બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। તો એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે। સાંજે 5 વાગે ભાજપ કાર્યાલય જઈ શકે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। ભાજપ કાર્યાલયે સાંજે 5 વાગે પહોંચી શકે છે પીએમ મોદી, કારણ કે હાલ જે પરિણામો આવ્યા છે એ જબરજસ્ત છે। ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પણ જબરજસ્ત ઉત્સાહમાં આવી ગયા છે, કારણ કે રાજસ્થાન, એમપી, છત્તીસગઢમાં સારી પોઝિશનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર દેખાઈ રહ્યા છે। અત્યાર સુધીના જે વલણો આવ્યા છે તેમાં 2 રાજ્યોમાં ભાજપને બહુમત દેખાઈ રહ્યું છે મળતું, જ્યારે છત્તીસગઢમાં કાંટાની ટક્કર ચોક્કસ છે। તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ છે, પરંતુ 4 માંથી 3 રાજ્યમાં બીજેપીની જે પોઝિશન છે એ ઘણી મજબૂત છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે 5 વાગે બીજેપી કાર્યાલય જઈ શકે છે। બની શકે છે કે ત્યાં એક જશ્નનો માહોલ પણ થાય, કાર્યકર્તાઓને તેઓ સંવાદ પણ કરી શકે છે અને અભિવાદન પણ કરી શકે છે, કારણ કે પહેલેથી જ પીએમ કહેતા આવ્યા છે કે કાર્યકર્તાઓ છે એમના જોરે જ પાર્ટી આગળ આવતી હોય છે, એટલે કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન કરવા માટે પણ ત્યાં જઈ શકે છે। તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય જઈ શકે છે પીએમ મોદી। મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। હાલ જે રૂઝાન આવી રહ્યા છે તે ફરી એકવાર આપને બતાવી દઈએ તો રાજસ્થાનમાં 104 બેઠકો પર બીજેપી આગળ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ 78 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહી છે। મધ્યપ્રદેશની જ્યાં સુધી વાત છે 156 સીટો પર બીજેપી આગળ છે, જ્યારે 72 સીટ પર કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહી છે। તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ આગળ છે 66 સીટો પર, જ્યારે બીઆરએસ પાછળ ચાલી રહી છે 41 સીટો પર બીઆરએસ આગળ છે। એટલે કે અહીંયા તેલંગાણામાં એકમાત્ર મજબૂત સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ છે, બાકીના 3 રાજ્યોમાં બીજેપી મજબૂત સ્થિતિમાં છે તેવું કહી શકાય। છત્તીસગઢમાં બીજેપી 49 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે। રમણસિંહે પણ દાવો કર્યો હતો ગઈકાલે કે 52 થી પ્લસ સીટો બીજેપીને મળશે છત્તીસગઢમાં, અને અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે કે 49 સીટો પર તો બીજેપીના ઉમેદવાર આગળ ચાલી જ રહ્યા છે। 52 પ્લસ થાય છે કે કેમ એ હવેના રૂઝાનોમાં સામે આવશે। હાલ સુધીની જે સ્થિતિ છે તે પ્રમાણે 3 રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિમાં દેખાઈ રહી છે। મધ્યપ્રદેશમાં શિવરાજ મામાનો જાદુ ચાલી ગયો છે, અને ત્યાં લાડલી બહેના યોજના જે હતી એનો પ્રભાવ ત્યાં દેખાઈ રહ્યો છે, અને બહુ જ પ્રચાર પણ થયો છે એ યોજનાનો। અને સાથે સાથે બીજેપીએ જે કેન્દ્રીય મંત્રી અને સાંસદોને પણ આ વખતે વિધાનસભામાં મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ ન રહી જાય એ પ્રકારની એક રણનીતિ અને માઇક્રો પ્લાનિંગ સાથે મધ્યપ્રદેશમાં બીજેપીએ જે મતદારોની વચ્ચે જઈને જે મુદ્દાઓ મૂક્યા તેનો પ્રભાવ અહીંયા મળતો દેખાઈ રહ્યો છે। અને હવે सीधा જઈશું नोएडा, जहां हमारी सहयोगी श्रुति जुड़ाई है। श्रुति, फिलहाल आप वहां पर क्या देख पा रहे हो? अपडेट दर्शकों को बताएं, अभी फिलहाल 4 राज्यों में क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें पंकज, तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां पर 199 सीटें होनी। वैसे 200 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन वहां पर कुन्नर यानी कि कांग्रेस के एक विधायक थे जिनकी डेथ हो गई। बीकानेर में 24 सीटों पर 23 सीटें ही पर ही चुनाव हो रहा है, लेकिन 199 सीटों का अभी भी आपको रुझान बता दें तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। 107 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस 75 और अन्य के खातों में 70 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि किंग मेकर के रूप में अन्य दिखाई पड़ रहा है। वहीं बढ़त बनाती हुई मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो नेक टू नेक फाइट दिखाई पड़ रही है। वहीं मिजोरम में क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमारे साथ सुरेश रैना जी हैं जो कि बताएंगे कि बीजेपी की बढ़त के, राजेश रैना जी माफ करेगा, जो कि बताएंगे कि कहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है और किन राज्यों पर कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक फाइट है। तो राजेश रैना जी, पहले तो हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ताबड़तोड़ रैलियां हुई उनकी, और जिस तरह एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसमें बता रहे थे तमाम एग्जिट पोल की बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ेगी और कांग्रेस लगभग 50 से 80 के बीच में सिमट जाएगी। आज जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तक, तो उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो बीजेपी के फेवर में ही अभी तक के आंकड़े गए हैं, लेकिन अभी 6-7 राउंड की गिनती ही हो चुकी है। अभी एक आध घंटे 1-1.5 घंटे में पोजीशन और भी क्लियर हो जाएगी, तो अभी देखेंगे आगे जाके क्या होगा। राजस्थान में आपको क्या लग रहा है किसका इफेक्ट ज्यादा भारी रहा है, किस बेसिस पे बीजेपी बढ़त बनाती है? क्योंकि राजस्थान का रिवाज रहा है पंकज की हर 5 साल के बाद वहां पर रिवाज बदलता है, यानी कि हर 5 साल के बाद। अगर 1998 की बात करें तो 30 साल हो गया राजस्थान में, हर 5 साल के बाद कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। अभी 2018 में कांग्रेस थी और 2023 में जिस तरह अभी तक रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अभी तक के रुझान के हिसाब से बीजेपी वहां पर लीड कर रही है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अभी 5 या 6 राउंड ही हुए हैं। 14 से 21 राउंड तक जाएगी गिनती, तो अभी अगले 1-2 घंटे में
ये रुझान क्या रहेंगे, तो उसको उस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी लीड करती हुई दिखाई पड़ी, क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई पड़ी, 130 से ज्यादा सीटें दिखाई पड़ रही है बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक मध्य प्रदेश की सिचुएशन भी वैसी है और छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक है, जबकि तेलंगाना में थोड़ा कांग्रेस आगे चल रहा है। तो लेकिन इनिशियल लीड्स हैं, इनिशियल ट्रेंड्स हैं, अभी 1-2 घंटे के बाद पूरी पोजीशन। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस क्या क्लीन स्वीप करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है? क्लीन स्वीप करती नहीं दिखाई पड़ रही अभी। कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस आपके साथ? नहीं, अभी कुछ ऐसा कमाल नहीं है। मिजोरम में क्या, मिजोरम तेलंगाना का क्या हाल है? तेलंगाना में तो कांग्रेस ने अभी तक कमाल ही किया है, अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से। गठबंधन के साथ कांग्रेस बनाएगी या फुल फ्लेज बनाएगी, फुल मैंडेट के साथ? अभी तक लग रहा है कि अभी तक जो ट्रेंड्स है वो ऐसा लग रहा है कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगले 1-2 घंटे में जो ट्रेंड्स बदल भी सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। केसीआर का पहले जो बीजेपी के साथ जाने का था, गठबंधन या बीजेपी के साथ जाने का था, क्या ये केसीआर को तेलंगाना में लॉस कर रहा है, ये मान सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो उन्होंने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया था कि हम वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। वो तो बाद में जब लोकसभा इलेक्शन हो जाते उसके बाद ही कुछ पता चल जाता है यार अभी, लेकिन अभी ऐसा मतलब 4 राज्यों के आज जो काउंटिंग हो रही है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी लीड करेगी? જ્યાં ચારે રાજ્યોના પરિણામ સૌથી પહેલા અહીંયા આવી રહ્યા છે। श्रुति, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अभी वहां पर इलेक्शन रिजल्ट हब जो हमने वहां पर बनाया है, जहां पर चारों राज्यों के परिणाम सबसे पहले आते हैं, जो दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं, वहां का जो माहौल है वो बताइए कि कैसे कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं? जी पंकज, आपको बता दें, देखिए ये जहां पर हम खड़े हैं ये तेलंगाना का रिजल्ट हब है, जहां पर हमको बता रहे हैं, और तेलंगाना में 119 सीटें हैं जहां पर बीजेपी लीड करती हुई, फिलहाल कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई पड़ी है 65 सीटें, वहीं बीआरएस 42 और बीजेपी 7 और एआईएम असुद्दीन ओवैसी का रोल क्योंकि रहता ही है। हैदराबाद और तेलंगाना की बात करें 4 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 1 सीटें जा रही है। अब हम ये आ गए हैं रिजल्ट हब यानी कि रट में। ये राजस्थान का रट है जहां पर 199 सीटों के लिए तमाम देखिए टीमें लगी हुई हैं। लगातार अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं कि लीडिंग फाइट किसके किसके बीच में है और किन किन पोजीशन से, किस किन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन सा आगे चल रहा है। ये भी राजस्थान है, और उसके अगर हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रुझान आपको यहाँ से पता चल जाते हैं। डाटा की 230 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 157 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 72 पर आ रही है, और वहीं अन्य के खाते में 1 जा रही है। तो ये आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान का। जी श्रुति, मैं आपके पास आऊंगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में। तो हाल